کا وقت، گاڈز ٹائمنگ، خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت، وہ وقت جس پر خدا اپنے وقت کے مطابق کام کرتا ہے. خدا کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. وہ خود ایسا خدا ہے جو سب کا خالق و مالک ہے، جو وقت کا خدا ہے، جو اس کا بنانے والا ہے. اس لیے آج ہمارا ٹاپک ہے گاڈز ٹائمنگ، خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت. آج کتنے لوگ ہیں جس بات کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر میں سال سے چرچ میں آ رہا ہوں تو میری پریشانی دور کیوں نہیں ہوتی؟ اگر میں 2 مہینے کے ساتھ خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہا ہوں، وقت اپنا پورا دیتا ہوں، اتوار کو چرچ آتا ہوں، اپنی دہی پوری نکالتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں جیسا تھا ویسا ہی ہوں، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، آخر کون سی ایسی بات ہے؟ تو کتنے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ لیکن آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ یہ وقت کا جو لیمٹ ہے یہ کس کے اختیار میں ہے اور کام کون کرتا ہے اور کون ایسا کر سکتا ہے ہمارے لیے. آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ گاڈز ٹائمنگ، خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت. خدا وقت کا خدا ہے. خدا جو ہے وقت کا بنانے والا ہے اور خدا وقت کا خدا ہے اور وہ اپنے وقت پر کام کرتا ہے. نہ وہ آپ کا محتاج ہے، نہ وہ میرا محتاج ہے، نہ وہ کسی بادشاہ کا محتاج ہے، نہ وہ کسی وزیر کا محتاج ہے، بلکہ جب وقت ہوتا ہے جو اس نے وقت ٹھہرایا ہوا ہے اسی وقت پر وہ کام کرتا ہے. اور خدا کی تولنا تو وہی بندہ جانتا ہے جو اس تولنا میں آ جاتا ہے. جو خدا کی تولنا کے اندر نہیں ہے وہ اس بات کو نہیں جان سکتا، اور جو خدا کی تولنا میں آئے گا اسے ہی پتا چلے گا کہ خدا وقت کا خدا ہے. کیونکہ جب ہم تولے جاتے ہیں، جب ہم اس مصیبت میں کسی بھی پروسیس میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ وقت خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو پل میں کر سکتا ہے، وہ چاہے تو سالوں پر بھی ڈال سکتا ہے. اس لیے خدا جو ہے وہ وقت کا خدا ہے. آپ دیکھتے کہ تولنا کیا ہے. تولنا کمزوری کی بھی ہو سکتی ہے، تولنا بیماری کی بھی ہو سکتی ہے، تولنا بے روزگاری کی بھی ہو سکتی ہے، تولنا کسی بیماری، کسی مصیبت، کسی پریشانی میں. جب ہم پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، جب ہم خدا کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں تو اسے تولنا کہتے ہیں. اور تولنا میں وہی بندہ پورا اترتا ہے جو اس کے ٹھہرائے ہوئے وقت میں اس کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ چلتا جاتا ہے، چاہے اسے کچھ نظر آئے یا چاہے نہ آئے. یہ نہیں کہ اچھے دن ہے تو خدا ہے، برے دن ہے تو خدا کٹ گیا. خدا ہمیشہ ایمانداروں کے ساتھ ہے. خدا ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے پکارتے ہیں. پر جو وقت تولنا کا ہے یہ بہت کھٹن، بہت مشکل اور بہت بے صبری کا وقت ہوتا ہے. چاہے اس میں سال لگ جائے، 3 مہینے لگ جائے، کوئی بھی ٹائم ہو جائے، یہ وقت واقعہ ہی بہت مشکل ہے. میں نے خود اس وقت کا تجربہ کیا ہے اور میں جانتی ہوں کہ تولنا کا وقت بہت سخت وقت ہوتا ہے. اس میں سے گزرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے. اس میں سے وہی بندہ گزر سکتا ہے جو صبر سے خدا کی راہ دیکھتا ہے. ہر بندہ نہیں گزر سکتا. اور جب میرے بھی یہ وقت ہے تو میں جانتی ہوں کہ تولنا کا وقت کیسا وقت ہوتا ہے. میں نے زندگی میں بہت ساری تولنا میں پڑھ کے دیکھا ہے کہ تولنا بڑا مشکل وقت ہے. سب جانتے ہیں اور میری گواہی کو بھی جانتے ہیں، لیکن
थोड़ी सी बात करूंगी कि जब हम कराची में थे तो हर चीज खत्म हो गई। मैंने 3 दफा इस घर को बनाया और तीनों दफा मुझसे चीजें बिक जाती थी, हत्ता कि मैं बर्तन भी हम घर के बेच देते थे। वो वक्त ऐसा मुश्किल का वक्त, ऐसा कठिन वक्त, ऐसा प्रॉब्लम का वक्त कि जिसको बयान करना मुश्किल है। उसके बाद बच्चे पैदा होते थे, वो मर जाते थे, ये तोलना उस तोलना से भी बड़ी थी। उसके बाद बेरोजगारी की तोलना, ये सारी तोलना जो है इसमें से मैंने गुजर कर देखा है और मैं जानती हूँ कि ये तोलना बड़ी मुश्किल है। ये वक्त बहुत कठिन होता है, ये वक्त बड़ा बेसब्री का होता है, ये वक्त बहुत लंबा लगता है, ये वक्त जो है ये बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन इसमें वही बंदा कायम रहता है जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। जिसका खुदा के साथ कोई तल्लक नहीं है, वो बंदा इस तोलना में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो साल मुसीबत को देखेगा और एक वक्त आएगा छोड़ देगा। कितने लोग ऐसे मेरी जिंदगी में आए हैं जो दुआ करवाते हैं, अगर 2 महीने वो मसला हल नहीं हुआ तो वो जगह छोड़ देते हैं, कनेक्शन खत्म कर देते हैं कि ये बात पूरी नहीं हुई। ये हकीकत है कि ये वक्त वही बंदा सब्र से गुजार सकता है जिसके पास ईमान है कि यीशु जिंदा है और वो कर सकता है। ये तोलना का वक्त चाहे बीमारी का हो, चाहे लाचारी का हो, चाहे पैसे की कमी का हो, चाहे औलाद का ना होना, चाहे कोई ऐसी घर में जरब लग जाए जो खुदा की तरफ से भी हो, तो हम तब भी कहते रहते ये शैतान का काम है। लेकिन इस तोलना के अंदर, इस पीरियड के अंदर वही बंदा खड़ा रहता है जिसके पास उम्मीद है कि यीशु जिंदा है। दूसरे बंदे का खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। आज जिसके पास औलाद नहीं है वो इस तोलना में से गुजर रहा है। अब जब आस पड़ोस में देखता है, जब दूसरे रिश्तेदारों के पास बच्चे देखता है, तो उसके दिल में आता है कि खुदा इसको दे सकता है तो क्या मेरे लिए दरवाजे बंद है? ये एक तोलना है जो जिंदगी पर आई हुई है। अब वो जिंदगी अगर ईमानदार है, अगर वो जिंदगी खुदा के साथ चलने वाली है, तो इस बात की वो बिलीवर रहे कि ये एक वक्त है जो गुजर जाएगा और इसी तोलना में खुदा ने मेरे लिए वो खूबसूरत बात रखी है। जो इसके बाद मिलता है उसका अजर दूसरे लोगों से डिफरेंट होता है, दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होता है। जो तोलना के बाद बाहर आता है उसकी हर चीज निखरी होती है और हर चीज दूसरों से अलग होती है। और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, चाहे आपके पास कितना कुछ भी है। अभी आज ही मैं गौर कर रही थी, एक जिंदगी बात कर रही थी आपके आने से पहले, तो उसको मैं बता रही थी कि नौमी, रूत और उर्फा के बारे में, कि नौमी सास थी, उर्फा रूत उसकी बहू थी। और उर्फा रूत जो है वो दोनों मुवाफी थी। और एक वक्त आया कि उनके शौहर मर गए और सास ने बोला कि हम वापस चले जाते हैं, हम वापस अपने मुल्क में जाते हैं। लेकिन उर्फा वहां की वहां ही रह गई और रूत जो है वो सास के साथ आ गई। अब उर्फा ने वहां पर शादी की। उर्फा के 5 बेटे हुए, 5 सूरमा थे, 5 जंगजू थे, 5 जवान थे, 5 बड़े माने हुए उस घराने के मर्द थे। अब रूत के दिल में भी आता होगा कि मैं क्यों सास के साथ आ गई, काश मैं भी वहां रहती, काश मुझे भी बेटे मिल जाते। अगर मेरी जेठानी के पास ये बरकत है तो मुझे भी रात की बरकत मिल जाती। आज मैं अकेली धक्के खा रही हूँ, आज मैं अकेली खुमार हो रही हूँ। लेकिन एक वक्त आया कि रूत की शादी उसी के शौहर के खानदान बॉयज के साथ हो गई और जैसे उसकी शादी हुई उसको खुदा ने एक बेटा दिया। उसने उसका नाम अबेद रखा। अबेद के बाद उसका बेटा हुआ अबेद का और उसने उसका नाम यस्सी रखा और यस्सी का बेटा हुआ, उसने उसका नाम दाऊद रखा। अब
की बात यह है कि सब जानते हैं जाति जूलियत को और दाऊद को। जाति जूलियत जो है वो उर्फा का बेटा था। जाति जूलियत उर्फा का बेटा था। दाऊद जो है वो यसी का बेटा था, और जिसकी परदादी जो है वो रूत थी। अब बरकत देखिए कहां पर जाके नजर आ रही है। अब दाऊद ने जाति जूलियत को मार दिया। किसके हाथों मारा? दाऊद के हाथों। अब वो वक्त ठहराया, वो वक्त जिसमें रूत ने सब्र के साथ इंतजार किया, सब्र के साथ खुदा ने जो वक्त के बाद उसको औलाद मिली, वो जबरदस्त गिफ्ट था खुदा का कि उसकी नस्लों में से यसू आया और उसी की नस्ल में से दाऊद आया, और दाऊद ने जाति जूलियत को मारा। यानी वो माँ का घमंड कि मेरे पास 5 थे, 5 सूरमा है, 5 जबरदस्त है, लेकिन रूत देख रही है। एक वक्त आया, सब्र से खुदा का इंतजार किया, और खुदा ने उसे दाऊद जैसा जो है वो पड़पोता दिया, और वो परदादी बनी, और दाऊद ने फिर जाति जूलियत को मारा। इसलिए खुदा जब देर के साथ देता है, उस तोलना के बाद जो देता है वो सबसे मुख्तलिफ होता है, वो सबसे डिफरेंट होता है। क्योंकि इतना वक्त अगर लगा है खुदा को कुछ देने में, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए कोई स्पेशल बना रहा है जिसके लिए वक्त लगा। इसी तरह खुदा ने रूत के लिए स्पेशल बनाया और वक्त लगा उसके लिए। आज जितने लोग तोलना के अंदर है, चाहे वो तोलना कोई भी है, कोई भी मुश्किलात है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, दुख है, बीमारी है, रुपये पैसे की कमी है, कोई भी तोलना है, अगर आप उसमें अड़े और खड़े रह जाएंगे, मसीह के साथ अड़े और खड़े रह जाएंगे, तो वो तोलना के बाद जो है जबरदस्त रिजल्ट आपके सामने लाएगा। और वो रिजल्ट ऐसा होगा कि आपके आस पड़ोस वाले, ये दुनिया, ये मोहल्ला, ये लोग देखेंगे कि ये कैसा जबरदस्त रिजल्ट आया है जो आज हमारे पास नहीं है। लेकिन जब उनके पास था तो तब दूसरे के दिल में रख जाता था कि इनके पास ये सब कुछ है तो हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन जब उस तोलना के बाद बंदा, मजबूती के बाद बंदा खुदा के सामने आता है, तो खुदा एक अजीब तरीके से, नए तरीके से, बड़े तरीके से बंदे को खड़ा करता है कि दुनिया देखती। इसलिए खुदा की तोलना में कामयाब रहे। खुदा की तोलना में किसी को मत देखिए, मत किसी को देखिए और तरसे और रश करे कि अगर आज इसके पास ऐसा है तो मेरे पास क्यों नहीं। अगर खुदा इसको दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। कितने जानते हैं हन्ना की तोलना को? कोई जानता हन्ना की तोलना को? जब हन्ना पर वक्त आया तो खुदा का कलाम बताता है कि वो औरत लगातार हैकल में जाती थी, लगातार हैकल में जाती थी। जब भी वो इबादत करने जाती तो वो हैकल में जाती थी, लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी। अब इस तोलना में से भी गुजर रही है, सौतन उसको चढ़ाती है, बातें करती है, लोगों की सुन रही है, दिल में एक रक्ष है कि अगर इसके हो सकता है तो मेरे भी कोई ना कोई खुदा दे। लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा। ये हन्ना की तोलना है जिसमें से वो गुजर रही है। अगर हन्ना मजबूत ना रहती तो शायद वो ये बरकत ना ले सके, लेकिन वो बेसब्री नहीं हुई, सब्र के साथ उसी जगह पर जाती थी जहां यीशु मिल सकता था, और मांगती रही। और खुदा का कलाम कहता है कि हन्ना के रहम को यीशु ने खुद बंद कर रखा था और खुद ही उसके रहम को बंद किया। जब वो किसी तोलना में डालता है तो वो खुद ही डाल देता है। ये नहीं कि हम कहें ये जादू टोने की वजह से। अब खुदा ने मेरे से कोई काम लेना है, मुझे उसके लिए तैयार कर रहा है, तो वो जादू टोना तो ना हुआ, वो तो खुदा की तोलना है जिसमें से मैं तुल रही हूँ, गुजर रही हूँ। इसी तरह आप सबकी जिंदगी में भी ऐसे मामला हैं, लेकिन जो बंदा उस तोलना में मजबूत रहेगा, खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा, खुदा से प्यार करता रहेगा, चलता रहेगा, चाहे साल गुजर जाए, 2 साल
गुजर जाए, कितना भी अरसा हो जाए, खुदा सब कुछ देने की कुदरत रखता है। अगर हम अब्राहम को देखें तो जब खुदा ने उसके साथ बात की तो कितने साल का था? कोई जानता है वो कितने साल का था? जब खुदा ने कहा था कि मैं तेरे साथ वादा करता हूँ कि ये करूंगा, तुझे औलाद दूंगा, तेरा अपना ही, तेरे अपने वंश में से जो तुझे बेटा दूंगा, तो कितने जानते हैं कितनी उम्र का था? 86 वर्ष। जब पहली दफा खुदा ने बात की 75 वर्ष का था, जब दूसरी दफा खुदा ने बात की 86 वर्ष का था, और जब खुदा ने बेटा दिया तो 99 वर्ष का था। यानी कि बात करने का मकसद है, इसमें पीरियड देखे, इसमें साल देखे कि एक नबी है, एक खुदा का मानने वाला है, उसका बिलीवर है, उसके हुक्मों पर चलता है, लेकिन सालों का फर्क देखे कि जब खुदा ने 75 साल में बात की, फिर 86 साल में खुदा कह रहा है कि अभी भी तू कामल हो जा। अब एक बंदे को खुदा कहता है कि मैं तुझे ये नेमत दूंगा, लेकिन 10 साल के बाद खुदा फिर आता है तो खुदा कहता है अभी भी तू कामल ही हो, तो कैसा लगेगा? इसी तरह अब्राहम के साथ खुदा ने किया, 75 साल में बात की, फिर 86 साल में खुदा दोबारा आया तो खुदा ने अब्राहम से कहा कि अभी भी तू कामल हो। तो कितना सब्र है, क्या वो भी तो खुदा से कहता होगा कि खुदा भी और कितना कामल हो, 10 साल तो गुजर के तुझे बात की हुए, अगर मैं और आप होते तो यही खुदा को जवाब देते। लेकिन उसने बड़े सब्र के साथ 99 वर्ष में कलाम पूरा हुआ और 99 वर्ष में उसको जाके बेटा मिला। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि अगर मैं किसी तोलना के अंदर हूं तो मैं खुदा से क्या गिले शिकवे करती हूँ, क्योंकि कौम इस्राइल का 40 दिन का सफर 40 सालों पर पड़ गया था। क्यों? क्योंकि वो बुड़बड़ाए खुदा पर गुस्सा किया, खुदा पर नाराज हुए, और वो वक्त जो है वो 40 सालों का हो गया। ये हमारे इख्तियार में। अगर आप चाहते हैं कि मैं मुसीबत में हूँ, दुख में हूँ, बीमारी में हूँ, किसी भी तंगी में हूँ, मेरे पास अपना घर नहीं है, मैं किसी तोलना में से गुजर रही हूँ, तो इस तोलना में शायद खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, या खुदा मुझसे अलग हो गए, या खुदा कहीं चला गया, या खुदा खामोश हो गए, ऐसी कौन सी बात है? लेकिन आज मेरा पैगाम ये है कि खुदा तोलना में किसी को भी नहीं छोड़ता, बशर्ते के बंदा उसके साथ चलने वाला। ईमानदार हो, ये नहीं कि एक हफ्ता आराम नहीं मिला तो दूसरे हफ्ते किसी पड़ोसी ने बताया तो चल पड़े उसके साथ दूसरी राहों पर। एक साल काम का जवाब नहीं मिला तो चल पड़े किसी दूसरे रास्ते की तरफ। ये तोलना कामयाब तोलना नहीं है। कामयाब तोलना वही है, अड़े रहो, खड़े रहो, जिन भी हालात में वो रखता है, इंतजार करो कि देर के बाद वो करेगा, लेकिन जो वो करेगा वो दूसरों से अलग हो। अगर उसने वक्त लिया है तो भाई आप भी समझते इस बात को कि अगर वो किसी काम में वक्त ले रहा है तो वो कोई स्पेशल ही कर रहा है। अगर वो आम कर रहा था तो आपको दुनिया के साथ मिला देता, लेकिन अगर लेट कर रहा है तो कोई स्पेशल आपके लिए तैयार कर रहा है, और जब स्पेशल सामने आएगा तो फिर दुनिया देखेगी, और जब दुनिया देखेगी तो यीशु के नाम को जलाल मिलेगा। इसलिए उसकी तोलना में गए हो तो शुक्रगुजारी करो, उसकी तोलना के अंदर हो तो उसके वक्त का इंतजार करो कि जो खुदा ने वक्त मेरे लिए ठहराया है वो सबसे डिफरेंट है, वो सबसे ब्लेस्ड है, वो सबसे अच्छा है, चाहे वो वक्त जब भी है। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं कि अगर कोई बंदा कहे कि शायद ये खुदा 2 हफ्ते में कर गुनाह। अक्सर लोगों को कहती हूँ जब पीरों फकीरों के पास जाते हैं पूरी जिंदगी जाते रहते हैं, जब रह जाते थोड़ा सा टाइम हमें खुदा का पता चलता है, हम खुदा के कदमों में आते हैं, फिर तो हम कहते हैं वाह ये काम भी 1 मिनट में हो जाए, ये भी 1 मिनट में हो जाए, मैं एक दफा चर्च गया हूँ, ये भी खुदा कर दे, वो भी खुदा कर दे। गौर करो जो पिछला वक्त उससे जुदा होकर गुजारा है वो कितना वक्त था, आज जब उसके साथ जुड़े हो तो कितना वक्त हुआ आपको उसके साथ। अगर वहां गंदगी में 10 साल गुजारे हैं तो 5 तो यीशु के साथ गुजार के देखो, कि उसकी तोलना में आके देखो, पूरे उतर कर देखो, तो खुदा क्या नहीं कर सकता, तो खुदा सब कुछ कर सकता।
पर गुजरी और गुजरती भी हूँ और गुजरी भी हूँ। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये तोलना मुझ पर तो कट्ठी आई। रोजगार चला गया, बच्चे चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, जीरो किया, जीरो करके यहाँ पर खुदा लाया और 3 दफा घर को खत्म किया, 3 दफा घर को बनाया, चीजें बनाई, बेची, सब कुछ किया। लेकिन इस तोलना के अंदर हमने किसी का कहना नहीं माना कि यहाँ से शिफा मिलती है, वहां से मिलती है। बड़े आए, बड़े पैगाम लाए कि आप कराची से यहाँ के धक्के खा रहे हो, यहाँ भी पीर है, वहां भी पीर है, यहाँ भी ये होता है, वो होता है, आप वहां चले। तो मैं हमेशा कहती थी कि जो है ये भी चाहे चला जाए, हमें सिर्फ यीशु चाहिए। और आज आपके सामने खड़े हैं, अड़े हैं और ईमान रखते हैं, और आइंदा से भी खुदा ऐसा ही हम सबको रखे और खुदा सब कुछ करने की कुदरत है। कोई भी कमी नहीं छोड़ी इस खुदा ने, कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। खुदा ने मुझे बेटा दिया, ब्लेस से आपके सामने ढोलक बजाता है, जैसे जैसे उम्र के साथ बड़ा होगा खुदा इसी में से और भी बहुत सारे काम लेगा। दूसरे बच्चे प्रस्तुत करते हैं, खुदा ने जो कुछ मुझे दिया है वो ब्लेस दिया है, क्योंकि मैंने इस वक्त में अपने खुदा को नहीं छोड़ा। अगर आप भी तोलना के अंदर हैं तो खुदा को ना छोड़ें। ये जहाँ पर हम बैठे हैं ये जगह भी हमारी नहीं थी, सब जानते हैं कि सब भाइयों की हमारी नहीं थी। लेकिन जैसे हम अभी ये रिसेंटली शादी पे गए हैं तो वहाँ पे सब इकट्ठे थे, हमें नहीं पता उसके दिल में कैसे ये बात आई, सब ने हमें लिख के खुद दिया कि ये जो जगह है ये हम आपको दे रहे हैं, आप जैसे मर्जी खुदा का काम करो। ये हमारी नहीं थी, हमारा तो इसमें से थोड़ा सा हिस्सा था, लेकिन सब ने हमें लिख के सबके सामने और 2-4 लोगों के सामने बैठ के स्टाफ पेपर करके दिया कि आप चाहो इसको बनाओ, खिदमत करो। जब खुदा कुछ करने के लिए आ जाता है तो उसको कोई हटा नहीं सकता, जब वो कुछ करना चाहता है तो उसके आगे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज जो आंखें उसको देखती हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होती, जो उसकी तोलना के अंदर मजबूत रहता है, जो घाटी में भी उसको याद रखता है, जो परेशानियों में भी यीशु यीशु पुकारता है, जो दुखों में भी खुदा के नाम को ऊंचा करता है, वो कामयाब होता है। और जो पीछे हट जाता है इसके आगे कोई रास्ता कोई नहीं, खुदा के बाद कोई और रास्ता कोई नहीं। अगर कोई हट जाता है तो ना वो खुदा का ना किसी दूसरे रास्ते। इसलिए आज अपनी जिंदगी पर गौर कि अगर मैं गुर्बत में हूँ, अगर ये मेरे ऊपर तोलना है खुदा की, अगर मेरे पास औलाद नहीं है ये तोलना है मेरे ऊपर खुदा की, अगर मेरे पास रोजगार नहीं है तो ये तोलना है मेरे ऊपर खुदा की, अगर किसी और चीज की कमी खुदा ने जिंदगी में छोड़ी हुई है तो ये तोलना है मेरी जिंदगी के अंदर। तो आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि इस तोलना के अंदर मैं खुदा के साथ क्या बुड़बुड़ाता, खुदा को मैं क्या कहता हूँ, खुदा से मैं कौन से गिले शिकवे करता, जो मैं आज माफी मांगू कि खुदा ये तूने वक्त डाला है और तू ही इसमें से निकलने का रास्ता देगा, तू ही ये सब कुछ पूरा करेगा। मुझे इसमें खड़े रहने का फजल दे, मुझे इसमें अड़े रहने का फजल दे, मुझे इसमें मजबूत रहने का फजल दे। और खुदा जो है उस तोलना के अंदर आपको छोड़ेगा नहीं, आपके साथ साथ चलेगा। चाहे आप पत्थरों में से गुजर रहे हो तो यीशु भी आपके साथ पत्थरों के गुजरे, चाहे आप अंधेरे में से गुजर रहे हो तो यीशु वहां से भी आपके साथ हो। क्यों? क्योंकि उसने आपको छोड़ा नहीं। आज गौर करें अपनी जिंदगी कि आप खुदा से कितना को प्यार करते हैं। एक ही बात है जो हम इस तोलना से कामयाब कर सकती है। निकाले पहला करंथियों 13 बाप उसकी 4 आयत ऊंची आवाज में पढ़े और हर कान सुने के खुदा का कलाम इस तोलना में से निकलने के लिए आज हमें कौन सा पैगाम देता है जिसके वसीला से हम इस तोलना में पूरे उतर सकते हैं। और वो कौन सा पैगाम है? एक ही पैगाम है जिस तोलना में हमारी मदद कर सकते हैं। हालेलुया। पहला करंथियों 13 बाप उसकी 4 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, पहला करंथियों का खत है, उसका 13वां बाब है, उसकी 4 आयत। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं।
और नसीबा काम नहीं करती और अपनी बेहतरी नहीं चाहती, जलजलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बदतरासी से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को सवाल नहीं, नबूवतें हो तो मकबूल हो जाएंगी, ज़बानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा क्योंकि हमारा इल्म नाकस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब काम आएगा तो नाकस जाता रहेगा। हालेलुया। कितनों ने कलाम गौर से सुना है कि एक ही बात है जो हमें इस तोलना में कामयाब कर सकती है, और वो क्या है? मोहब्बत। क्या है? मोहब्बत। ऊंची आवाज में बोलें, मोहब्बत। अब अपनी जिंदगी पर गौर करें कि अगर इस घाटी में मैं हूं, इस तोलना के अंदर हूं, तो क्या ये फल मेरी जिंदगी के अंदर है? अगर है तो ये मुझे पार लगा सकता है, अगर ये नहीं है तो मेरी कामयाबी नहीं है, क्योंकि वहां लिखा कि मोहब्बत साबर है। यहाँ पर सब्र भी करना पड़ता है, और सब्र करने के लिए हमें मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत नहीं होगी तो सब्र नहीं होगा। इसलिए तोलना के वक्त में कामयाब होने के लिए हमें जिस बात की जरूरत है वो मोहब्बत है। मोहब्बत में चले जाएं, डूब जाएं। थोड़ा वक्त है, वक्त को गनीमत जाने। यीशु आने वाला है। कितने लोग दुनिया के हालात देख रहे हैं, कितने लोगों को पता है कि दुनिया के साथ बाहर क्या हो रहा है, कितने लोग जानते हैं कि लोग किन मुसीबतों में पड़े हुए हैं। तो खुदा ने कहा था कि जब तुम ऐसे हालात देखो तो जान जाना कि मैं आ रहा हूं। जैसे पत्तों को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं, क्या फुगियां निकल रही है तो कौन सा मौसम है, पत्ते निकलेंगे तो कौन सा है। इसी तरह उसने कहा जब ऐसे हालात देखो तो जान जाना कि मैं चल रहा हूं। अब बाकी बातें कोई नहीं रह गई तो कोई शहादत स्टाम्प पेपर लिख के दे कि यीशु आने वाला, यीशु आने वाला। आप खुद जान जाएं कि यीशु वाकई आ रहा है। रूह की तैयारी करें, मोहब्बत के फल को अपने अंदर पैदा करें, तोलना के अंदर यीशु की शुक्रगुजारी करें, तोलना में खुदा के साथ चलें। अगर आपके बच्चे की तोलना है तो उस बच्चे को दुआ में रख दें। अगर आपकी गरीबी की तोलना है तो अपने खुदा के सामने अपना जो है वो कोई ऐसा बीज लगा ले जिसके ऊपर रोज हाथ रख के खुदा से दुआ करें कि ये बीज जो है ये मेरी इस घटी को जो है खत्म करे। कोई ऐसी बात जो आपके पास औलाद नहीं है तो आज आप रोज खुदा से कहेंगे, अपने पेट पर हाथ रख के ये रोज दुआ करें कि मुझे मिल गया, जो मैंने मांगा मुझे मिल गया, मैं इस घाटी से बाहर हूं। आप इकरार करना शुरू करेंगे, और जब आप इकरार करेंगे तो खुदा आपको उस तोलना में से, उस कमजोरी में से बाहर आएगा। और जब वो बाहर आएगा एक नए तरीके से, स्पेशल तरीके से, खूबसूरत तरीके से और बड़े तरीके से आपको सामने लाएगा, जिसको दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे और आपसे पूछेंगे कि ये आपको बरकत कहाँ से मिली। हालेलुया। आज खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी करते हैं। आमीन।